Today we will start new topic, system of linear equation, and we solve them using numerical techniques. So system of simultaneous linear equations. For example, we have a 3 cross 3 system, 3 variable, 3 equations uh, which are linear. For example, we have 3x1 plus x2 plus 5x3 equals to 1, x1 plus x2 plus x3 equals to 2, 5x1 plus x2 plus 7x3 equals to 9. So here x1, x2, x3, x1, x2, x3, these are unknown. So this is an example of a 3 cross 3 system. So three equations, three unknown. So in this topic, we will solve the system by using direct methods. Direct means they are not iterative. So in general, we consider, so we consider n cross n system like 2 cross 2, 3 cross 3, etc. So we write the system in this form a11x1 plus a12x2 plus a1nxn equals to some b1. And if you compare with first equation, so a11 is 3, a12 is 1, and a13 is 5, okay, and is 3, and b1 is 1 right hand side. So I'm writing two index like a12. So first is corresponding to row and second is corresponding to column. ओके तो फर्स्ट रो है सो फर्स्ट रो सो a1 अगली एंट्री 2 and so on. And in second row we will write a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn equals to b2 and so on. Last equation would be an1 x1 plus an2 x2 plus ann xn equals to b of n. Okay, so in above example, if you take n equals to 3, so that a31 is 5, a32 is 1, and then a33 is 7, and equals to b3, which is 9. So n can be 2, 3, 4, can be any number. So we have a linear system of equations in n unknowns. So what are the unknowns? x1, x2, xn. So we can write this system in matrix form. Okay, so you can you can write this system in matrix form. Like if you want to write this 3 cross 3 in matrix form, so how you will write it? So write coefficient 3, 1, 5, first equation coefficient, then second equation coefficient which are 1, 1, 1, then third equation coefficients 5, 1, 7. Then column vector x1, x2, x3 equals to 1 to 9. And usual matrix multiplication, if you how you multiply two matrix, first row column से multiply करोगे ना, so corresponding entry को first से 3x1 then x2 plus 5x3 equals to ये 1 आ जाएगा right hand side. Second row को multiply करोगे this one, so x1 plus x2 plus x3 equals to 2.
So you can write the system in matrix form, and this matrix form will help us to write a MATLAB program. So now I'm writing this n cross n system in matrix form. Likewise, uh, we wrote 3 cross 3 system. So write first equation coefficient, फिर second equation के coefficient लिख दो, and so on. Or x1, x2, xn in column, and right hand side b1, b2, bn, that is also a column vector. So in matrix form we write this system. तो पहली इक्वेशन a11, a12, a1n. Then second equation 21, 22, 2n. In general an1, an2, ann. Then column vector x1, x2, xn equals to b1, b2, bn. Or in short notation we write, I'm writing this matrix as A, this as X, and this as B. So I'm writing this system in form AX equals to B, where A is coefficient matrix, this X is column vector, x1, x2, and this B is also a column vector, which has right hand side b1, b2. ओके, तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सो फाइंड एक्स. ओके, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? Solution means find x, and if uh, A inverse is possible, यानी कि इनवर्स निकाल सकते हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर. ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. सो यू कैन फाइंड ए इनवर्स. इफ ए इनवर्स इज पॉसिबल, then x equals to a inverse b. This is the solution. ओके, अब कैसे निकाला है? दोनों साइड में मैट्रिक्स में वैसे आप राइट में नहीं ले जाते. सो इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट में, ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई. सो ए इनवर्स ए विल बी आइडेंटिटी. ओके, सो x इक्वल टू ए इनवर्स b. सो if a inverse is possible, then this is the solution. But as you know, it is not always possible to, I mean, it's not very easy to compute A inverse. And if determinant is 0, then you cannot find inverse. So in this chapter, we will solve the system without calculating the A inverse. So what is the motivation in this direct method? So we solve the system by using what we call elementary row operations. Without, or in other words, without calculating A inverse. Okay, so what is the aim of this chapter? So solve the system, find the solution without calculating A inverse, and we will write the systematic procedure so that we can write a MATLAB code. Okay, so I'll start with one example, then we will write a pseudo code that you can implement in MATLAB. So these are direct methods. There are no iterations.
These are just based on some elementary row operation. So I'll start with an example. For example, अच्छा जो let me write the name of method. So this procedure is called Gauss elimination. Gauss elimination भी बोलते हैं और Gaussian भी बोलते हैं. Gaussian elimination. If you write Gaussian, so Gaussian elimination. That you have studied earlier. That make zeros. जैसे ये सिस्टम है आपके पास, तो 3x3 है. सो रिड्यूस दिस सिस्टम इनटू 2x2. तो वो कैसे करोगे? सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेक जीरोज बिलो. अब वो कैसे कर सकते हो? मान लो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस करोगे तो x1 विल बी डिसअपीयर. ये 5 गायब करना है तो इसको फर्स्ट से करना है या इससे किसी से फर्स्ट से करना है आपने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से. सो कोएफिशिएंट विल बी 15, देन सब्सट्रैक्ट. So x1 will be disappear from these two equations. So from here x1 will be disappear. Then you will have 2x2 system. Then with the help of one x2 make another x2 0. So लास्ट में आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप एक अननोन निकाल लोगे. जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, आप हाई स्कूल में आप पढ़ते थे. बट हियर वी विल name this procedure and we will do it in systematic way so that we can write a MATLAB program. For example, solve the following system using Gauss elimination. So we are taking 3x3 examples. So 3x1 plus 2x2 minus x3 equals 1. x1 minus 3x2 plus 2x3 equals to 2. 2x1 minus x2 plus x3 equals to 3. So firstly, we write the system in matrix form. Okay, so matrix form will be 3, 2, minus 1, 1, minus 3, 2, 2, minus 1, 1. Okay, x1, x2, x3 equals to 1, 2, 3. अब मान लो आपने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, 3 से. So you will multiply 3 with each entry as well as right hand side. ठीक है, तो जो चेंज आप लेफ्ट में करोगे वही आपने राइट में भी करने हैं. सो तो हम क्या लिखते हैं कि मैट्रिक्स है नेम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. So what is augmented matrix? This is or you can say this is AX equals to B. So this is A together with B. ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन A विथ राइट हैंड साइड. तो जो आप मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करोगे, अब हमने करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इनको 0 बनाना नीचे. तो फिर आपको 2x2 सिस्टम मिलेगा. फिर यहाँ पे आ जाओ, इसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 कर देंगे. अगर आप इक्वेशन देखोगे तो इनको 0 कर दो पहले, फिर 2x2 सिस्टम 2 बच गया ये. सो x2 की हेल्प से नीचे वाले को 0 कर दो, तो ये आपको सिर्फ x3, तो x3 मिल जाएगा लास्ट में.
सेकंड में x3 फिट कर दो तो आपको x2 मिल जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में x2 x3 फिट कर दो तो आपको x1 मिल जाएगा। सो जस्ट एलिमेंट्री प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, जो भी आपने करना है दोनों साइड में करना है, क्योंकि इक्वेशन में इक्वलिटी है। सो इफ यू मल्टीप्लाई 3, सो यू विल मल्टीप्लाई 3 विद ईच एंट्री, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इक्वेशन में तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। सो 3 1 2, 2 -3 -1, -1 2 1। और अगर आपने इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, you can put a small line here, but we won't put every time. फिर अगली है राइट हैंड साइड, दैट इज 1 2 3। सो यू कैन पुट ए लेबल। पहली इक्वेशन को आप E1 कह दो, फिर आप E2 कह दो, थर्ड को E3। तो पहली फर्स्ट रो दिस इज E1 टुगेदर विद राइट हैंड साइड, सेकंड रो E2 एंड थर्ड रो इज E3। ओके, सो आपने अब किसी इक्वेशन में नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन से आप इसको फर्स्ट कह दो, आप इसको सेकंड कह दो, इसको थर्ड कह दो। ठीक है, सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो यू कैन लेबल इन एनी ऑर्डर। ओके, तो मैंने फर्स्ट को फर्स्ट ही कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, इस एंट्री को देखना है, ये एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो हम पहले कहेंगे सिंस A11 इज 3 विच इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से 3 से नीचे दोनों 1 और 2 को आपने इनको बना देना है 0। 3 की हेल्प से नीचे वालों को 0। ओके, सो A11 इज 3 विच इज नॉन जीरो, एंड वी, अब इसको बोलते हैं एंड वी एलिमिनेट। अब नीचे वाले नंबर कौन से हैं? वी एलिमिनेट सेकंड इक्वेशन, सेकंड फर्स्ट A21 which is 1, we eliminate A21 and A31 which is 2, this one, third row first column. So we eliminate these two entry. तो अब प्रोसीजर क्या है कि जो 3 है ये नॉन जीरो है, तो 3 से दोनों को डिवाइड कर दो। किसको? इसको 1 को, तो 1/3 आएगा। 2 को भी डिवाइड कर दो, 2/3। इन एंट्री को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ओके, सो फर्स्ट, तभी मैंने कहा नॉन जीरो होना चाहिए, सो यू कैन डिवाइड। सो डिवाइड दिस 3, ओके, जो बिलो हैं उसके दोनों को डिवाइड कर दो, तो उन नंबर को हम स्टोर भी करेंगे, एंड वी विल सी लेटर ऑन दैट दीज नंबर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। सो फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीप्लायर्स आर, मल्टीप्लायर्स नोटेशन है इनका m से लिखते हैं। अब जिसको डिलीट करना है उसकी उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसको डिलीट करना है मैंने, तो ये पोजीशन कौन सी है? 2 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको डिलीट करना है, ये पोजीशन कौन सी है? 3 1। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखूंगा जो 1/3, उसको मैं कहूंगा M21, इसी के अकॉर्डिंग। और 2 को डिलीट करने वाला जो मल्टीप्लायर है उसको मैं लिखूंगा M31, उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो लेबल देम अकॉर्डिंगली। तो पहला मल्टीप्लायर है M21 विच इज 1/3, एंड नेक्स्ट वाला है M31, 3 से डिवाइड कर दो, 2/3। ठीक है, अब जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड को मैंने क्या लिखना है? सेकंड माइनस जो मल्टीप्लायर है 1/3 फर्स्ट, एंड थर्ड इक्वेशन को लिखूंगा मैं, ये रिप्लेस करने का कि थर्ड विल बी -2/3 E1। अब इस नोटेशन का मीनिंग है कि पहले आप फर्स्ट से डिलीट करें तो फर्स्ट को करना है। पहले आप फर्स्ट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड में से अब यहाँ पे जो एंट्री आएंगी यहाँ पे वो क्या लिखना है? यहाँ पे 1 था, तो 1 की जगह क्या आएगा? 1 -
ऊपर वाली एंट्री को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो 1/3 और 3 तो अपने आप 0 बन गए। ठीक है, -3 की जगह क्या आएगा, -3 माइनस मल्टीप्लायर ऊपर 1/3 और ऊपर वाली एंट्री 2, सो दिस इज -11/3। 2 की जगह क्या आएगा, 2 जो एंट्री है 2 माइनस जो इस रो का मल्टीप्लायर है 1/3 और ऊपर वाली एंट्री -1, so 2 plus 1/3 this is 7/3। 5/3 2 7/3 आएगा सर। 7 बाई कैसे आएगा, 6 7 सॉरी 7/3। और अगला 2 क्या क्या आएगा, 2 माइनस 1/3 ऊपर 1 है, सो दिस विल बी 5/3। ओके सर हाँ जी, सर अगर हम इसको उल्टा करें, मतलब हम मल्टीप्लायर या कुछ वो ना निकाले और हम पहले ऐसे कर लें कि हाँ सीधा कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो भी कर सकते हो, ये हम इसलिए कर जैसे रहे हैं। पहले हम उसको 1 ही बना दें ऊपर वाली रो में, मतलब हाँ 3 से पहले ऊपर डिवाइड करके फिर माइनस कर हाँ दें। वो भी कर सकते हो, वो सिंपल रो एलिमिनेशन है। और जो हमने गॉस एलिमिनेशन लिखा है, क्योंकि हमने हम अब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने एक मैटलैब प्रोग्राम भी लिखना है ना, तो हम एक सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, सो दैट वी कैन राइट ए प्रोग्राम। और आगे हम वी विल सी फर्दर, सो दीज मल्टीप्लायर्स दे विल हेल्प अस टू राइट LU फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये कह लो कि गॉस एलिमिनेशन इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, सो दैट यू कैन राइट ए प्रोग्राम। बाकी है वही है, जीरो बनाते हैं वो चीज है, बट हमने एक वे में लिखना है, रिपीट करना है हर बार उसको। ठीक है, तो एंट्री अब यहाँ पे थर्ड रो चेंज कैसे होगी, थर्ड रो का मल्टीप्लायर हमने लिखा था 2/3, तो फर्स्ट को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, फर्स्ट को जिससे डिलीट कर रहे हो ना, सारी एंट्री को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस कर दो, ये जैसे हमने अभी किया है। ओके, सो इन दैट, सो नाउ वी विल राइट जो नया मैट्रिक्स बनेगा, इक्वल तो नहीं होगा, इक्विवेलेंट कह सकते हैं। फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है ना, 3 2 -1 1, यहाँ ऑटोमेटिकली 0 लिख देना है आपने। अब एंट्री यहाँ पे -11/3 7/3 5/3, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक एंट्री लिख देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल था आपका -1 था नीचे, मल्टीप्लाई 2/3 है, और फर्स्ट रो की एंट्री ऊपर 2 है। ओके, सो दिस विल बी -7/3 5/3 then 7/3, so this is my new augmented matrix। अब फिर आपने रिपीट करना है, अब आपने डायगोनल पे जाना है। अब ये तो फर्स्ट तो हो गया काम फर्स्ट में आपका, अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब इसकी हेल्प से नीचे एक ही है, इसको 0 कर दो आप, मेक 0 बिलो। So in other words, now we will take this, अब ये 2 क्रॉस 2 है। ओके, तो लिखना उसी वे में है, और फिर हम मल्टीप्लायर लिखेंगे। नाउ मल्टीप्लायर इज मल्टीप्लायर, अब एक ही आना है। अब किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे, जिसको डिलीट करते हैं इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखोगे। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड M32। कॉलम, है ना। अब लिखते कैसे हैं, ये एंट्री जिसको डिलीट करना है और उसके ऊपर जिससे डिलीट करना है -11/3 से, सो दिस इज 7/11। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अब आप सेकंड रो को उसी वे में लिखना है। सेकंड रो को कैसे लिखो, सॉरी थर्ड को कैसे लिखोगे, अब सेकंड से कर रहे हो तो सेकंड माइनस मल्टीप्लायर और ऊपर वाली एंट्री,
सर गलत लिख सॉरी, E3 थर्ड माइनस 3 थर्ड लिखना है ना, थर्ड की एंट्री चेंज कर रहे हो, थर्ड माइनस सेकंड। तो जो कैलकुलेशन होंगी वो कैसे होंगी, या तो ऑटोमेटिकली 5/3, ये अगली एंट्री 5/3 की जगह क्या आएगा, 5/3 माइनस मल्टीप्लायर, उसके ऊपर जस्ट एंट्री, ऊपर एंट्री 7/3। तो ये 2/11 आएगा, कैलकुलेट कर देना। और इस 7/3 की जगह क्या आएगा, 7/3 माइनस मल्टीप्लायर और ऊपर वाली एंट्री 7/3 के ऊपर क्या है, 5/3। दिस इज 14/11। Okay, so new matrix, augmented matrix, uh, first no change, second भी अब no change, थर्ड में यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पे एंट्री 2/11, देन यहाँ पे 14/11। So this is our final system, reduced system. If you go back, तो अगर हम बैक जाएं, अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे दोबारा से, तो ये अब ये सिस्टम है क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी इसमें, फर्स्ट तो सेम है 3x1, ओके, सो 3x1 plus 2x2 minus x3 equals ये 1, फर्स्ट तो सेम है। सेकंड इक्वेशन क्या बनी, x1 0 बन गया, माइनस 11/3 x2 प्लस 7/3 x3 इक्वल्स 5/3। और थर्ड इक्वेशन 2/11 x3 equals to 40/11. So it means in third equation you only have one variable x3, and in second you have two variable x2 x3, and in first you have all three. तो थर्ड से आप x3 कंप्यूट कर सकते हो, fit x3 in second you can compute x2, and fit x2 x3 in first you get x1। तो इसको हम बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हो, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन मैट्रिक्स फ्रॉम बॉटम यू कैन कंप्यूट ईच अननोन। और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कोई राउंडिंग चॉपिंग नहीं किया, नंबर्स को मैंने p/q फॉर्म में लिखा है, जैसे 5/3 को 5/3 लिखा है, 7/3। So if you write numbers in this form you won't get any error, क्योंकि इक्वेशन में हम प्लस माइनस ही कर रहे हैं और तो कुछ हम कर नहीं रहे। ठीक है, लाइक इटरेटिव you don't have any initial guess, nothing, so you are doing plus minus multiplication, that you can do। तो इसमें एरर होगा। अब कंप्यूटर पे अगर आप लिखोगे ये चीज, तो कंप्यूटर तो ऐसे लिखेगा नहीं, कंप्यूटर ने अगर 1/3 लिखना है तो कंप्यूटर विल राइट 1/3 एज दिस माइनस 0.333 according to limit। Okay, so that you can do। p/q फॉर्म आप तब लिख सकते बाय हैंड, पर कंप्यूटर इस फॉर्मेट में नहीं लिखेगा। ठीक है, तो अब मैं उसको लास्ट में सिंपलीफाई कर रहा हूँ, तो यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। और जो मैट्रिक्स ये बना है, अगर आपको ध्यान, इस मैट्रिक्स में डायगोनल, मैट्रिक्स तो यही था ना मैट्रिक्स, so non-zero entry are on diagonal or above side, below diagonal you have all zeros, so this matrix is known as upper triangular matrix। so what is upper triangular matrix, non-zero entries are above the diagonal, अपर वाली साइड नॉन जीरो है तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, अगर लोअर वाली साइड एंट्री नॉन जीरो है, अपर डायगोनल से अबव जीरो है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो वी गॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप लास्ट में आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिख लो, डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग इक्वेशन अगेन। सो नाउ यूज
इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. नाउ यूज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन. So we get, तो थर्ड इक्वेशन जो थी लास्ट वाली 2/11 किसका कोफिशिएंट x3 का, ये इक्वल्स टू 40/11 लास्ट ये. ठीक है, यहां से आप x3 निकाल लो which is 7. Now write second equation. -11/3 x2 plus 7/3 x3. x3 की वैल्यू डाल दो अब 7 यहाँ पे, equals to 5/3. So take everything in right hand, simplify. x2 is 4. Then first equation 3x1 plus 2x2. x2 is 4 minus x3 7 equals to 1. Solve for x1. So this gives you 0. So solution is, जिसको मैंने x भी लिखा था, x का मीनिंग है कॉलम वेक्टर, x1 x2 x3. तो पहला 0 है, दूसरा 4 है, फिर 7 है. So this is the solution of the linear system. ओके, तो पहले आपने मल्टीप्लायर निकालने हैं. मल्टीप्लायर निकाल के फिर आपने फर्स्टली कंप्यूट मल्टीप्लायर. जिसको डिलीट करना है उससे डिवाइड कर दो और उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको स्टोर कर लो, m21 m31. ठीक है, फिर आपने सेकंड इक्वेशन को लिखना है, सेकंड माइनस मल्टीप्लायर जो उसका है टाइम्स फर्स्ट, और थर्ड को क्या लिखना है, थर्ड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स दिस फर्स्ट एट फर्स्ट स्टेज. Then you repeat the procedure at second stage. You again compute multiplier. You make 0 here. Okay, so make 0 here. Then you write third equation as third minus multiplier times second. यानी कि मल्टीप्लायर को इनसे मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से, फिर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री का माइनस कर दो. Then you got system in upper triangular form. Last equation will give you x3. Fit x3 in second, you got x2. And by fitting x2, x3 in first equation, you got x1. Okay. तो जब मैंने मल्टीप्लायर कंप्यूट किए जैसे फर्स्ट स्टेज थी, सो वी हैड 3. ओके, एंड सेकंड स्टेज यू हैव 11/3. बट समटाइम्स यू मे हैव दैट दिस एंट्री इज 0 or small or very very small, so you cannot divide with 0. मान लो यहाँ 0 आ जाता, फिर क्या क्या करते हो, फिर तो आप मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते ना. तो फिर इक्वेशन है, मैंने कहा था कि सेकंड इक्वेशन किसी को सेकंड को, किसी को फर्स्ट को, तो अगर यहाँ 0 आ गया तो आप इन दोनों को स्वैप कर दो आपस में. ठीक है, थर्ड को ऊपर ले जाओ, सेकंड को थर्ड की जगह ले जाओ. To avoid division with 0 or small element or very very small. So this procedure is called partial pivoting. So this is called partial pivoting. So अब ये की एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट जिसको हम पिवट बोलते हैं, पिवट. सो
द एलिमेंट, ये थे एलिमेंट्स जो A11, पहले आपने A11 से डिवाइड किया ना डायगोनल वाले से, फिर A22 एंड सो ऑन. सो दीज आर नोन एज पिवट एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट कह सकते हो आप, मेन. ओके, सो वी अज्यूम दैट this AII, A11, A22, so these are non-zero. If at any stage, this element becomes zero or very small, very small, then we interchange the rows. And this process is called, so this is called, है तो Gauss elimination है, so this is called Gauss elimination with partial pivoting. So जो अभी हमने स्टडी किया था Gauss elimination, that was simple Gauss elimination, you can say. Simple means that you don't had any problem. At each stage you are dividing with element which was non-zero and which was not very small. But in some situation you may have these coefficients are zero. So to avoid division with zero, you interchange the row. अब इक्वेशन में नंबर मैटर नहीं करता ना. अब मैंने इसको फर्स्ट कहा, आप इसको थर्ड को फर्स्ट कह लो, ठीक है. बट हाँ, दो सब राइट हैंड साइड भी सेम लिखना है ना. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप स्वैप कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि लेफ्ट को चेंज कर दो ना, पूरी इक्वेशन चेंज करनी है. तो पूरे का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों चेंज करना है आपने. सो यू कैन से एनी इक्वेशन फर्स्ट, एनी. मान लो यही अगर एग्जांपल था, अगर ये क्वेश्चन होता, यहाँ पे एक्शन होता ही ना, फिर आप क्या करते हैं? so, इसको आप फर्स्ट कह दो. सर इसका मतलब फिर हम मतलब हाँ जी, सेकंड मतलब फिर अगर अब जैसे ये x1 0 आ रहा है तो फिर हम इसमें कोई मल्टीप्लाई यूज ही नहीं करेंगे ना. हाँ नहीं, x1 0, x1 0 नहीं है, x1 का कोफिशिएंट 0 है. हाँ सर वो मतलब वही कह रहा हूँ, तो जैसे फिर हम इसमें मल्टीप्लाई यूज ही नहीं करेंगे ना. नहीं, मल्टीप्लायर यूज करेंगे. मैं इक्वेशन को चेंज कर दूंगा, मैं इसको सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा, इसको फर्स्ट कह दूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा सेकंड. तो अब सर जैसे सेकंड नीचे आ जाएगी तो उसमें x1 का ऑलरेडी तो, कोफिशिएंट तो, 0 तो, आ गया ना. तो कोई बात नहीं, तो वो 0 है तो 0, कोई बात नहीं, उसको हम कुछ नहीं करेंगे फिर. तो फिर वो मतलब जो हम m21 ले रहे थे वो फिर हम लेंगे नहीं ना, फिर जोड़ भी नहीं हाँ, तो वो तो करेंगे. 0 ही आएगा ना, फिर आपकी एंट्री 0 है ना. ठीक है सर. तो एंट्री 0 है तो मल्टीप्लायर 0 हो गया. 0 का मीनिंग है नो नीड टू डू एनीथिंग, है ना. ओके. ठीक है. सो नेक्स्ट एग्जांपल दैट for example, solve the system. This is 6x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to -2. 2x1 plus 2 by 3 plus 1 by 3 x3 equals to 1. So x1 plus 2x2 minus x3 equals to 0. So solve the system using Gauss elimination. And it is given कि comparison के लिए कि this system
has exact solution that is known from another sources. 2.6, x2 equals to minus 3.8 and x3 equals to minus 5.0. Okay, so we will solve the system using Gauss elimination. So in two ways, without and with partial pivoting. ठीक है? एक बार सीधा सॉल्व करके देखते हैं, that then you will get wrong answer. फिर हम देखेंगे कि pivoting करके देखेंगे, then so we use, अब मैं इनको let us say कि restriction है, so we use 4-digit rounding arithmetic and augmented matrix is coefficient 4-digit में लिखना है, 6 तो 6 ही है, full number है 2 right hand side -2, then second equation 2/3 in 6-digit rounding 0.6667 round कर देना 4-digit, फिर अब 1/3 0.333, फिर 1 1 2 -1 0. So label them E1, E2, E3. तो मल्टीप्लायर क्या होंगे? मल्टीप्लायर्स आर 2 को डिलीट करना है पहले, ठीक है, M21, so 2/6 1/3 4 डेसिमल में लिखना है 0.33 एंड M31 1 को डिलीट करना है 6 से, so 1/6 इन 4 डेसिमल 0.1667 राउंडिंग, ठीक है। फिर आपने एक बार फर्स्ट ये मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट में और एक बार ये, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस सब्सट्रैक्ट 1.667, ठीक है। सो वी विल राइट E2 एज E2 माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स फर्स्ट, और थर्ड को आप लिखोगे थर्ड माइनस 0.1667 फर्स्ट। जो नया मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट नो चेंज, सेकंड में यहाँ 0 0 डाल देना यहाँ पे, और ये एंट्री जो बनेगी 0.000301 बहुत ही छोटा, यहाँ पे -0.333 1.667, ठीक है, यहाँ पे भी 1.667 -1.333 4 डिजिट 0.3334। फिर आप यहाँ डायगोनल पे आ जाओ, राइट मल्टीप्लायर 1.667 को डिलीट करना है, सो दैट पोजीशन इज M32, जिसको डिलीट करना है, किससे डिलीट करना है, 0.001 से। सो सडनली यू गॉट ए वेरी बिग नंबर, सो राइट E3 एज E3 -16670 टाइम्स सेकेंड। जो नया मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट नो चेंज, सेकेंड नो चेंज 1.667, third 0 0, and here you got 555 -27790. Okay, and we will continue in next class. Okay, तो थर्ड से आप x3 निकाल लो, करना कंप्यूट, x3 तो आएगा -5 पॉइंट समथिंग,
but from here you got xt in 4 digit, x2 आपको मिल जाएगा यहाँ से 0, but exact answer was -3.8, so wrong. And x1 you got 1.335 and exact answer is 2.6, so you will get wrong answer, and that will, the wrong answer is coming from this guy. Okay, करना complete, आगे we will discuss in next class. Any query? No, sir. This chapter is very simple, just based on these operations. Okay, I'll stop now.